reaction video in which we are going to talk about the factors, ठीक है, which affects the rate of reaction. हम लोग ने rate of reaction पढ़ा. What is rate of reaction? Rate of reaction is nothing but कितना reaction एक faster, कितना fast वो reaction consume होगा, कितना fast वो reaction होगा, ठीक है. That is known as a rate of reaction. So there are few factors. Basically there are how many? 5 factors जो मैंने बोर्ड पे लिखा है. There are how many? 5 factors, ठीक है, which affect the rate of reaction. ठीक है, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन को क्या होता है, अफेक्ट होता है. आइदर वो रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर होगा या फिर स्लोअर होगा, डिपेंडिंग ऑन दैट. ठीक है, ऑलरेडी हम लोग ने आउट ऑफ दिस वी हैव स्टडीड व्हाट कैटलिस्ट, वी हैव ऑलरेडी डन विद द कैटलिस्ट. ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट. सो वी हैव ऑलरेडी डन विद द व्हाट, द रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, दिस डिपेंड्स ऑन द कैटलिस्ट. ठीक है, तो फर्स्ट फैक्टर जो भी फिफ्थ फैक्टर है हम लोग का यहाँ पे, ठीक है, विच वी आर ऑलरेडी स्टडीड. पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है और नेगेटिव कैटलिस्ट होता है. पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है जहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा और नेगेटिव कैटलिस्ट में जहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा. सो दिस इज व्हाट वन ऑफ द फैक्टर्स. ठीक है, सो वी आर डन विद कैटलिस्ट. आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट. मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को इन्फॉर्म कर दिया व्हाट इज कैटलिस्ट. यस, so we are done this. Now rest there are what 4 factors are still remaining. Now this 4 factors we are going to discuss that what exactly what this factor is all about. So this factor is what nature of reactant. अभी nature of reactant में कैसे है, as we have studied the displacement reaction. Displacement reaction में हम लोग ने reactivity series पढ़ा था, if you guys remember. अभी reactivity series में अगर मैं nature of reactant का बात करूँ यहाँ पे, if I take aluminium and if I take zinc as a reactant, ठीक है, I know aluminium का reactivity क्या है, higher है. ठीक है, हम लोग ने जो याद लिखा था, please stop calling me a cute zebra. ठीक है, I like calling a cute guy. Yes, some of you guys remember calling a cute guy. Yes, वो reactivity series shortcut याद है तुम लोग को. Yes, वो shortcut में हम लोग को पता है aluminium comes first. Aluminium क्या होता है? Aluminium comes what first? Now this aluminium if is coming first, that means उसका reactivity higher है. जिंक का रिएक्टिविटी लोअर है. सो नेचर ऑफ रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है, जो फैक्टर है कि जिसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा वो फास्टर रिएक्शन करेगा. जिसका रिएक्टिविटी फास्टर है, मतलब जिसका रिएक्टिविटी ग्रेटर है, उसका रिएक्शन फास्टर होगा. ठीक है, दैट मींस एल्यूमिनियम विल रिएक्ट मोर फास्टर कंपेयर्ड टू अ जिंक. सो दिस इज द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट. कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट में जिसका रिएक्टिविटी ज्यादा है, greater the reactivity, faster is the reaction. So aluminum will perform reaction faster compared to a zinc. So aluminum will perform what? A faster reaction compared to a zinc. Why? Because nature of reactant, nature क्या है इसका, इसका nature क्या है, reactivity ज़्यादा है, इसका nature क्या है, reactivity कम है. So aluminum will perform reaction more faster. ठीक है, so this is the factor. कि nature of reactant, nature पे depend करता है कौन सा reactant तुम लोग ने choose किया हुआ है. So depending on the choosing of reactant, your rate of reaction changes. Your rate of reaction in aluminum will be faster. Zinc rate of reaction will be slower. Compare करेंगे तो, ठीक है. Now we are done with this rate of reaction. This depends on what nature of reactant. We are done with the first factor. ठीक है. Next we are talking about size of reactant. Now I will give you a simple example. Size of reactant में कैसे? Let's say I have taken water. यहाँ पे एक ग्लास है, यहाँ पे एक ग्लास है. There are 2 glasses of water. ये ग्लास के अंदर मैं शुगर क्यूब्स डालता हूँ. क्यूब्स, इतने बड़े बड़े क्यूब्स आते हैं. ठीक है, वो क्यूब डाल. ये ग्लास के अंदर मैं शुगर पाउडर डालता हूँ. पाउडर कर लिया, नॉट छोटे छोटे जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते छोटे छोटे क्यूब्स, वो नहीं, बड़ा सा क्यूब आता है. ठीक है, जो 5 स्टार रेस्टोरेंट्स में तुम लोग को मिलते हैं, इतने बड़े बड़े शुगर क्यूब्स आते हैं, वो ये ग्लास के अंदर डाला. ग्लास ए. ग्लास बी के अंदर मैंने शुगर पाउडर डाला, उसको एकदम पाउडर कर दिया, पाउडर के अंदर डाल दिया. ठीक है, सो क्या है फैक्टर? साइज ऑफ रिएक्टेंट्स. सो जितना साइज ऑफ रिएक्टेंट छोटा रहेगा, ठीक है, उतना रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर. अभी दोनों को डिसॉल्व करो, कौन फटाफट डिसॉल्व होने वाला है? ऑब्वियसली योर आंसर विल बी सर पाउडर है, शुगर पाउडर, वो फटाफट डिसॉल्व होगा. सो दिस इज द व्हाट फैक्टर कि अगर तुम्हारा रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट का साइज क्या है, छोटा है, मतलब तो सरफेस एरिया और साइज उसका बहुत छोटा है. साइज छोटा तो सरफेस एरिया बड़ा होगा, पाउडर ज्यादा स्पेस लेगा कंपेयर टू अ शुगर क्यूब. सो अगर मेरा सरफेस एरिया ज्यादा है और वी से दैट द साइज ऑफ द रिएक्टेंट इज वेरी स्मॉल, छोटे 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 पार्टिकल्स है, very small particles compared to what sugar cube bigger particle. So rate of reaction will be faster if the size of the reactant is smaller. जितना small रहेगा size, उतना reaction faster perform होने वाला है. समझ रहा है तुम लोग को? This is the point that size of reactant, जितना size छोटा रहेगा उतना reactant faster होगा. ठीक है, उतना reaction faster होगा. Example दिया sugar, that is what again a what
रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे शुगर सोल्यूशन फॉर्म हो रहा है, ठीक है। सो नेचर के बाद आया साइज, साइज में क्या होगा, जितना साइज छोटा उतना रिएक्शन क्या होगा, फास्टर। क्लियर है? यस, वेरी गुड। सो वी आर डन विद द साइज ऑफ रिएक्टेंट आल्सो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, द कंसंट्रेशन, ठीक है। दिस इज योर कंसंट्रेशन। I'll write a reaction, ठीक है। एक रिएक्शन लेता हूँ, मैं लिखता हूँ Ca कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl, I am writing a dilute, ठीक है। dilute मतलब होता है information which is giving me dilute, ठीक है, will give me calcium chloride plus H2O plus carbon dioxide gas। ये तुम लोग का रिएक्शन है, दिस इज योर फाइनल रिएक्शन। यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऐसे एफोरेंस आ रहा है, तो मैंने अब एरो बताया। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल डाइल्यूट क्या होता है, डाइल्यूट मतलब क्या होगा, जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम है। वापस अगर मैं यहाँ पे शुगर का एग्जांपल दूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक ग्लास के अंदर 1 टेबलस्पून शुगर डाला हुआ, ये ग्लास के अंदर मैंने 1 टेबलस्पून नहीं, सिर्फ एक छोटा सा क्यूब डाला हुआ है, जो हम लोग शुगर यूज करते हैं, छोटा सा क्यूब डाला। कौन ज्यादा स्वीट रहेगा टेस्ट में, ऑब्वियसली ए वाला, जहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून शुगर डाला हुआ, ठीक है। चलो सिंपल कर देता हूँ, यहाँ पे 1 टेबलस्पून शुगर डाला हुआ है, यहाँ पे 10 टेबलस्पून शुगर डाला हुआ है, कौन ज्यादा स्वीट रहेगा, 10 टेबलस्पून वाला ज्यादा स्वीट रहेगा। मतलब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है किसका, शुगर का। शुगर इज अ रिएक्टेंट, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर क्या कम है, मतलब ये डाइल्यूट है और ये कॉन्सेंट्रेटेड है। इसका मतलब यहाँ पे भी क्या होगा, HCl है, जो क्या तुम लोग का डाइल्यूट है, ठीक है, कम अमाउंट में लिया हुआ HCl डाइल्यूट है। सो ऑब्वियसली अगर डाइल्यूट है, कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो यहाँ पे जो CO2 गैस बाहर निकल रहा है वो स्लो निकलेगा, ठीक है, बहुत स्लोली स्लोली धीमे 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 निकलेगा। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे डाइल्यूट HCl लिया हुआ है, समझ रहे हैं। उसकी जगह पे अगर ये सेम रिएक्शन में लिखूं, ठीक है, सेम रिएक्शन में लिखता हूँ, चलो if I write the same reaction, ठीक है, same reaction if I am writing here calcium carbonate plus HCl, but this HCl is concentrated ऐसे लिखते हैं CONC dot concentrated, ठीक है, gives calcium chloride plus CO2 plus H2। मेन क्या हम लोग का CO2 गैस, यहाँ पे CO2 गैस बहुत फास्ट क्या होगा, इवेपोरेट होगा, बहुत फास्ट एफोरेंस ऑफ CO2 गैस आएगा, ठीक है। क्यों? बिकॉज आई हैव टेकन कॉन्सेंट्रेटेड, यस और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड HCl लिया हुआ है, तो दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। इससे क्या प्रूफ होता है, द रेट ऑफ रिएक्शन RR, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। जितना कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा उतना तुम लोग का रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर होगा। प्रूफ किया ना, दोनों पे क्या, दोनों रिएक्शन एग्जैक्टली सेम है, रिएक्शन सेम है। यहाँ पे CO2 गैस, ठीक है, स्लोली क्या होगा, इवेपोरेट होगा, मतलब क्यों, बिकॉज यहाँ पे डाइल्यूट है। यहाँ पे CO2 गैस इवेपोरेट होगा बहुत फास्टर, रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ CO2 गैस विल बी फास्टर, क्यों, कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब यहाँ पे इवेपोरेट गैस फास्टर हो रहा है, मतलब इसलिए रिएक्शन फास्टर है ऑब्वियसली। ये यहाँ पे CO2 गैस स्लो आ रहा है, क्या है, स्लो है रेट ऑफ रिएक्शन, तो दिस इज द पॉइंट, ठीक है। ये कौन सा फैक्टर था, कॉन्सेंट्रेशन। सो लिख लो, ये नोट डाउन कर लो, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर कॉन्सेंट्रेशन। अगर कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन विल बी ग्रेटर, याद रखना है। ये कौन सा फैक्टर था, फैक्टर नंबर 3, ठीक है, 4th एक्चुअली, ठीक है, कैटलिस्ट भी कर लिया। अभी लास्ट फैक्टर है जो 5th फैक्टर है, व्हिच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, व्हिच इज टेंपरेचर। वेरी गुड, चलो नाउ टेम्परेचर भी तुम लोगों को मैं सिंपल एग्जांपल के साथ क्या करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। I'll explain temperature with a very simple example, ठीक है। Let's come back to the word sugar, ठीक है, शुगर एंड वाटर का एग्जांपल। यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे वाटर है, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ ग्लास ऑफ वाटर है, दोनों के अंदर मैंने 5 टेबल स्पून ऑफ शुगर डाला हुआ है, ठीक है। भाई डिफरेंस क्या है पता है, ये जो ए ग्लास है वो क्या है, वार्म वाटर है, गर्म पानी है, ठीक है। यहाँ पे है, यहाँ पे कोल्ड वाटर है, यहाँ पे हॉट वाटर, यहाँ पे कोल्ड वाटर है। यहाँ पे तुम्हारा 5 टेबल स्पून ऑफ शुगर फास्ट डिसॉल्व हो जाएगा, और यहाँ पे 5 टेबल स्पून ऑफ शुगर मे बी 1 मिनट या 2 मिनट या 3 मिनट के बाद डिसॉल्व होगा, डिपेंडिंग ऑन उसका टेम्परेचर क्या है। सो दिस इज व्हाट बेसिकली द टेम्परेचर फैक्टर, दैट जितना टेम्परेचर रिएक्टेंट का ज्यादा है उतना क्या होगा तुम्हारा, उतना रेट ऑफ रिएक्शन विल बी फास्टर। मतलब सेम चीज, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। ग्रेटर द टेम्परेचर ग्रेटर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। एग्जांपल दे दिया तुम लोग को मैंने, वार्म वाटर रहेगा तो रिएक्शन फास्टर होगा, कोल्ड वाटर रहेगा तो रिएक्शन स्लो होगा। मतलब यहाँ पे भी शुगर सोल्यूशन फॉर्म होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे शुगर सोल्यूशन फास्टर होगा, 2 मिनट में हो जाएगा, यहाँ पे मे बी
लगेगा बिकॉज यहाँ पे कोल्ड वाटर है. यू गाइस आर गेटिंग इट. यहाँ पे कोल्ड वाटर है, यहाँ पे हॉट वाटर है. सो ये हॉट वाटर वाला फटाफट क्या हो जाएगा, सुगर सोल्यूशन फॉर्म करेगा. कोल्ड वाटर वाला थोड़ा स्लोली फॉर्म करेगा. सो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन. आई होप this is clear. The factors which affect the rate of reaction, there are how many? 5. Nature of reactant, yes or no. Second क्या था तुम लोग का, concentration. फिर size of reactant. फिर क्या था, catalyst. And the fifth one कौन सा था तुम्हारा, concentration. Yes. समझा नहीं समझा. तो this were 5 factors which we have studied which affect the rate of reaction. Yes, I hope you guys are clear. Now we are moving to the next topic. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज ऑल अबाउट अ न्यू काइंड ऑफ अ रिएक्शन. ठीक है, जो हम लोग सीखने वाले न्यू टाइप ऑफ रिएक्शन जो आज तक हम लोगों ने कभी स्टडी नहीं किया हुआ है. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑक्सीडेशन एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिडक्शन. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों का डेफिनेशन पढ़ते हैं. व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन. सो ऑक्सीडेशन में कुछ लॉस या गेन होगा, रिडक्शन में कुछ लॉस या गेन होगा. इफ देयर इज अ ऑक्सीडेशन देयर इज द लॉस ऑफ समथिंग एंड गेन ऑफ समथिंग. इफ देयर इज अ रिडक्शन देयर इज अ लॉस ऑफ समथिंग एंड देयर इज अ गेन ऑफ समथिंग. So what is the definition? So definition of oxidation is that oxidation is a reaction where there is a loss of hydrogen or electron, where there is a loss of hydrogen or electron, दोनों में से एक होगा, and gain of oxygen. So this is the definition. Definition says that oxidation reaction is a kind of reaction where there is a loss of hydrogen or electron and gain of oxygen. This is known as your oxidation reaction. Whereas reduction is opposite of that. Opposite मतलब यहाँ पे जो gain हो रहा है वो यहाँ पे loss होगा, क्या oxygen. यहाँ पे जो loss हो रहा है यहाँ पे क्या होगा, gain होगा, क्या hydrogen and electrons. दिख रहा है. यहाँ पे जो loss हो रहा है oxidation में वो reduction में gain हो रहा है. यहाँ पे जो गेन हो रहा है ऑक्सीडेशन में वो यहाँ पे लॉस हो रहा है. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिडक्शन. रिडक्शन मतलब रिड्यूस करना. रिड्यूस करना मतलब कम कर देना. ठीक है. रिडक्शन किसका होगा, जहाँ पे लॉस ऑफ क्या होगा, ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन. ठीक है. सो दिस इज द डेफिनेशन. अभी तुम लोग को फॉर श्योर नहीं समझा है. ठीक है. क्यों, बिकॉज हम लोग ने सिर्फ डेफिनेशन पढ़ा है. मैं अगर एग्जांपल देके एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत अच्छे से समझेगा. सो लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल्स. ओके. सो लेट्स आई एम टेकिंग फ्यू एग्जांपल. सो क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ H2 plus O2 gives me H2O. Now here hydrogen is gaining oxygen. पहले हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन, इधर है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के पास नहीं है, राइट. ये हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन है नहीं है. ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन को गेन करके यहाँ पे क्या फॉर्म कर रहा है, H2O. मतलब हाइड्रोजन का क्या हुआ, हाइड्रोजन गेन ऑफ ऑक्सीजन. हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन. क्या हो गया, oxidation. So this is your oxidation reaction where there is a gain of oxygen, where there is a gain of oxygen. Yes or no. Let's take one more example. चलो ठीक है. I am taking copper plus oxygen. क्या फॉर्म कर रहा है, कॉपर is forming copper oxide. क्या फॉर्म कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड. ठीक है. ये कॉपर है, Cu. ठीक है, CuO. वापस कॉपर के पास ऑक्सीजन था क्या, नहीं. कॉपर ने ऑक्सीजन को गेन किया. देख रहे हैं, ऑक्सीजन गेन किया. गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या है, गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीडेशन. मतलब कॉपर इज गोइंग अंडर ऑक्सीडेशन. कॉपर इज गोइंग अंडर व्हाट, ऑक्सीडेशन. मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कॉपर का, बिकॉज कॉपर इज गेनिंग ऑक्सीजन. समझ रहे हैं नहीं समझ रहे. दिस इज योर ऑक्सीडेशन रिएक्शन. जहाँ पे हम लोग ने सिर्फ अभी क्या बताया, ठीक है, गेन ऑफ ऑक्सीजन. अभी लॉस ऑफ बता था, लॉस ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन. चलो एग्जांपल देता हूँ. चलो वेरी गुड. Let's say okay, loss of hydrogen. Okay, so we can do that. So अगर मैं यहाँ पे H2O लिखूँ और वो बन रहा है H2 plus O2. ठीक है, उल्टा रिएक्शन. So यहाँ पे अभी ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन था, अभी ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन नहीं है. दैट मीन्स दिस ऑक्सीजन, ठीक है, हैज लॉस्ट हाइड्रोजन. हाइड्रोजन को क्या किया, लॉस. ठीक है. चलो ओके, आई डू वन थिंग, आई गिव यू वन अनदर एग्जांपल. चलो कॉपर ऑक्साइड, कॉपर एंड ऑक्सीजन. क्या हो गया यहाँ पे, लॉस ऑफ ऑक्सीजन. ये तो देख लिया. अभी हम लोग इसका करना है,
ठीक है। सो इसका एग्जांपल मैं तुम लोग को देता हूँ। यहाँ पे क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सो इफ आई टॉक अबाउट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेरे पास है सोडियम, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 which is 2,8,1। तुम लोग को ये चीज़ पता है कैसे लिखते हैं हम लोग। अभी ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्या करेगा, लूज। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो क्या बनता है, Na प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब सोडियम में 2,8,1 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, उसमें से यहाँ पे अभी उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 10 इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, मतलब सोडियम इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब सोडियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। सोडियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया, सोडियम इज गोइंग अंडर व्हाट, ऑक्सीडेशन, वेयर सोडियम हैज लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन। दिख रहा है यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 11 है, और ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो लूज हुआ है यहाँ पे है, ये रहा, मतलब ये रहा 1 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों बाजू एंड ऑफ द डे 11 11 है, बट इसके पास कितना है, Na+ के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है। दैट मींस सोडियम इज लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। Sodium is losing from 11, it is losing 1 electron and becoming 10 electrons. Yes or no? That means यहाँ पे loss of electron है, क्या है, loss of electron. Loss of electron मतलब क्या हो गया, oxidation. मतलब sodium is going under oxidation. Now you guys are clear कि reaction में कैसे पता करना है कि वो reaction oxidation है कि क्या है। reduction अभी तक नहीं किया, oxidation समझा, इसके पहले gain of oxygen था, यहाँ पे loss of क्या है, electron है, तो क्या हो रहा है, oxidation. Yes or no? Are you guys clear with this? Very good. Now we are moving to the word reduction, जहाँ पे उल्टा होगा, ठीक है। reduction जहाँ पे क्या होगा, loss of oxygen. So if I talk about copper oxide, so copper plus oxygen. So यहाँ पे copper oxide के पास पहले oxygen था, वो oxygen lose करके सिर्फ copper बन गया। मतलब ये copper oxide is going under what, reduction. Yes or no? Copper oxide is going under reduction. और उसके पहले वाले में क्या पढ़ा था कि copper is going under oxidation. पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कॉपर इज गोइंग अंडर ऑक्सीडेशन। अगर ये दोनों कंबाइन होके ये फॉर्म करेगा, ये ब्रेक होके ये फॉर्म कर रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड इज गोइंग अंडर रिडक्शन, बट कॉपर इज गोइंग अंडर ऑक्सीडेशन। समझा नहीं समझा? तो दोनों जब भी कंबाइंड होता है, एक रिएक्शन, ऑलवेज याद रखो, कोई भी रिएक्शन होगा, ठीक है, दैट रिएक्शन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स मतलब क्या होता है, व्हेन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली एक ही रिएक्शन में परफॉर्म होगा, दैट इज नोन एज योर रेडॉक्स रिएक्शन। So ये क्या हो गया, reduction plus oxidation will give me redox reaction. क्या मिलेगा मुझे, redox reaction. समझ रहा है तुम लोगों को? तो ये redox reaction है जहाँ पे reduction and oxidation एक ही reaction में हो रहा है, और always हर एक reaction में reduction and oxidation होने ही वाला है। Each and every reaction undergoes reduction and oxidation. मतलब ऑक्सीडेशन में आइदर क्या होगा, ये दोनों में से कुछ चीज होगा, रिडक्शन में ये दोनों में से कुछ चीज होगा। सो ईच एंड एवरी रिएक्शन अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दैट्स व्हाई वी आर नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन जो दोनों साइमल्टेनियसली होगा। सो डेफिनेशन क्या है रेडॉक्स रिएक्शन का, अ रिएक्शन इन व्हिच, ठीक है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, reduction and oxidation comes simultaneously is known as your redox reaction. Yes or no? ठीक है। और रिडक्शन का और एग्जांपल्स देखते हैं, चलो। रिडक्शन में क्या है, रिडक्शन में गेन ऑफ क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो देखते हैं, यहाँ पे क्लोरीन है, Cl माइनस लिखा, ठीक है। हम लोग पता है Cl माइनस मतलब 2,8, हाँ 2,8 क्या है, 7 है, क्लोरीन। यस और नो? वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करता है, तभी वो क्या बनता है, Cl माइनस मतलब 2,8,8। Yes or no? So this chlorine is going under what? Is reduction because gain of क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। So अभी तुम लोग को हिंट बताऊं क्या, जब भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ पे होगा, गेन रिएक्टेंट के पास। वहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था, किसका, सोडियम का। अगर मैं यहाँ पे लिखूं Na gives Na प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन अगर प्रोडक्ट के साइड में है मतलब लॉस हुआ है, अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट के साइड आएगा मतलब क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ये क्लोरीन इज गोइंग अंडर रिडक्शन बिकॉज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन गेन किया उसने, दिख रहा है, ये रहेगा, ठीक है। मार्कर दूसरा यूज करूं, चलो दूसरा मार्कर यूज करता हूं। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, यहाँ पे गेन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, लॉस, समझा। तो ये क्या हो गया तुम लोग का, ऑक्सीडेशन। समझ रहे तुम लोग को, ये रिडक्शन है, ये ऑक्सीडेशन है।
समझा नहीं समझा? दोनों साइमल्टेनियसली एक दूसरे के साथ क्या फॉर्म करने वाले? रेडॉक्स रिएक्शन. क्या फॉर्म करेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन. सो दिस इज व्हाट बेसिकली योर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन combined they called as what? Redox reaction. ठीक है? I'll give you one example of redox reaction. ना चलो यहाँ पे देखो combined redox reaction. देखो यहाँ पे सब लोग इजी है, बहुत इजी है. चलो देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ Cu plus Zn2 plus gives Zn plus Cu2 plus. देखो ध्यान से देखो हाँ, ये रिएक्शन है तुम लोग का. अभी ये कॉपर है, कॉपर क्या बन रहा है? Cu2 plus. कोई भी Cu2 plus कैसे बनता है? जब भी वो क्या करता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. हम लोग ने देखा Na सोडियम से सोडियम Na plus बना तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये Cu से Cu2 plus बन रहा है, मतलब यहाँ पे क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये Zn2 plus से Zn बन रहा है, मतलब यहाँ पे क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. यस और नो? दैट मींस कॉपर Cu से Cu2 plus बना है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. व्हाट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन? क्या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन? ऑक्सीडेशन. मतलब कॉपर इज गोइंग अंडर ऑक्सीडेशन. and gain of electron मतलब क्या? reduction. So your Zn is going under what? reduction. ठीक है? combine ये पूरा reaction क्या हो गया? redox reaction where there is a loss of electron और gain of electron. तो redox reaction हो गया. समझ रहा है तुम लोग को? yes or no? clear है कि redox reaction कैसे होता है? Are you guys clear with this? yes. जहाँ पे loss और gain of something, loss or gain of something. So this is known as your redox reaction. So we are done with redox reaction also. ठीक है? जहाँ पे oxidation और reduction होता है. What is the definition of oxidation? Oxidation मतलब जहाँ पे क्या होगा? Loss of hydrogen or electron and gain of oxygen. Reduction is what? Loss of oxygen and gain of hydrogen or electron. So this is known as your redox reaction, where oxidation and reduction takes place simultaneously. जैसे ये वाला रिएक्शन में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हैं. That's why they are known as what? A redox reaction. Yes, you guys are clear with this? Very good. Now we are moving to the last topic of this chapter. ठीक है? Which is your balancing equation. ठीक है? Already तुम लोग ने 9th standard, 8th standard में balancing किया होगा, इसलिए मैंने अभी तक थोड़ा skip किया हुआ है. ठीक है? Already you guys have done it, balancing equation in 8th, 9th standard. So what I'll do, I'll just give a quick recap of how to balance it. I'll give you my method how to balance a particular chemical reaction. Okay? Yes? Okay. So we'll do what? Balancing of equation. ठीक है? So balancing of equation कैसे करना है तुम लोग को? We'll do one thing. I'll start with the basic. मैं एक example लूँगा. Simultaneously मैं explain करूँगा concept of balancing of equation. ठीक है? I take very simple example. ठीक है? If I'm taking let's say H2 plus O2 gives me H2O. अभी ये तुम लोग का एक simple एक equation है. Balance equation क्या बोलता है? That number of atom on the reactant side should be equal to number of atom on what? Product side. Then only your a chemical equation is balanced. मतलब नंबर ऑफ एटम. यहाँ पे कितने एटम दिख रहे हैं तुम लोग? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो ही एटम. तो यहाँ पे लिखूंगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है? ये तुम लोग का रिएक्टेंट साइड हो गया, ये प्रोडक्ट साइड. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. पहले ओरिजिनल नंबर लिखो. कितना हाइड्रोजन है इधर? 2 हाइड्रोजन. कितना हाइड्रोजन है? 2. यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 2. यहाँ पे कितना है? हाइड्रोजन कितना है? 2. ऑक्सीजन कितना है? 1. ठीक है? दिख रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन 1. So what exactly you need to do is ये ऑक्सीजन को 2 बनाना है, so that ये भी 2 हो जाए, ये भी 2 हो जाए. Number of atoms on reactant side should be equal to number of atom on product side. हाइड्रोजन इक्वल है, ऑक्सीजन इक्वल है? नहीं है. So इसको कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँ? ठीक है? इसको कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँ so that ये 2 हो जाएगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा मैं. अगर मैं ये 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो सिर्फ ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई नहीं होता, बिकॉज हाइड्रोजन भी साथ में है. हाइड्रोजन को भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब इधर 2 किया तो इधर भी 2 हो जाएगा. क्यों? बिकॉज ये दोनों साथ में है, दे आर टुगेदर, इसलिए हो रहा है. प्लीज ध्यान दो यहाँ पे कि H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन आर टुगेदर, दे आर वन सिंगल कंपाउंड. तो अगर ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वो हाइड्रोजन को भी ऑटोमेटिक होगा, मतलब यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा. कितना हो जाएगा टोटल? 4. यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 2. तो ऑक्सीजन अभी बैलेंस हो गया, बट हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो गया.
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये रहा हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर कितना 4 है, यहाँ पे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ करो मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 2, आंसर क्या आ जाएगा 4, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, इक्वेशन इज बैलेंस्ड. So this is your what balanced equation. ठीक है, कि 2H2 plus O2 will give me 2H2O. ठीक है, समझा तुम लोग को? ठीक है, 2H2O plus O2 will give me 2H2O. This is your balanced equation. This is your what? This is your balanced equation. Getting my point? Yes. ठीक है, number of atom of hydrogen left hand side 4 है, right hand side 4 है. Number of atom of oxygen left hand side 2 है, right hand side भी 2 है. Yes or no? Clear? Now we'll take one more example. चलो definition तो समझ गया तुम लोग को. Okay. Now you are clear with the definition. So let's discuss about what the next example. Okay. Okay. Fine. So CH4 plus O2 will give me CO2 plus H2O. ठीक है. Do one thing. I'll do one thing. मैं थोड़ा simple. इससे पहले simple example लेता हूँ. ये example मैं लूँगा. Don't worry. ठीक है. पर उससे पहले और एक simple example लेते हैं. Let's do a simple examples first. N2 plus H2 will give me NH3. ठीक है, समझा? किधर कितना है लिखो. स्टेप 1 में नाइट्रोजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, नाइट्रोजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है. नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है, 2 है, नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3 है. अभी मेरा रूल क्या है, मैं तुम लोगों को रूल मेरा बताता हूँ. ठीक है, मैं कैसे फॉलो करता हूँ. दैट योर ऑक्सीजन शुड बी बैलेंस्ड एट द लास्ट. सबसे लास्ट में ऑक्सीजन को बैलेंस करो, उसके पहले सेकेंड लास्ट हाइड्रोजन को बैलेंस करो, एंड लास्ट और सेकेंड लास्ट छोड़ के बाकी सब किसको भी कभी भी बैलेंस कर दो, फर्क नहीं पड़ेगा. तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो है ही नहीं, चलो अच्छा है. तो लास्ट में किसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के छोड़ के क्या बचा, नाइट्रोजन. तो पहले नाइट्रोजन को देखो, बैलेंस करो नाइट्रोजन को. कितना है यहाँ पे, कितना है यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे कितना है 1. सो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 हो जाएगा. मुझे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 हो गया ना. सो मतलब मेरे को यहाँ पे इसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अभी मैंने इसके पहले वाले में बोला इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन भी 2 से मल्टीप्लाई होगा. तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6. तो नाइट्रोजन इक्वल हो गया अभी 2 2. ठीक है, अभी बारी किसका है, अभी टर्न किसका है, हाइड्रोजन का. 3 2 जा 6. यहाँ पे कितना है 2 है सिर्फ, ये रहा 2. क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 3, 6 हो गया. सिंपल, डन, वी आर डन. N2 plus 3H2 gives 2NH3. बैलेंस हो गया. काउंट करो कितना, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 6, हो गया बैलेंस. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे नंबर ऑफ एटम इक्वल है. एज सिंपल एज दैट. बस इतना सिंपल इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है. ठीक है, ऑक्सीजन सबसे लास्ट में, हाइड्रोजन सेकंड लास्ट, उसके पहले कोई भी रैंडम ऑर्डर में बाकी सब एटम कर सकते हो. जैसे अभी वाला देखोगे तुम लोग, देखो यहाँ पे, चलो 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 देखो यहाँ पे. Let's take an example of CH4 plus O2 gives CO2 plus H2O. ठीक है, चलो देखते हैं. यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है. ऑर्डर भी वही लिख रहा हूँ, दिख रहा है तुम लोग को. यहाँ पे भी कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन लास्ट में. ठीक है, पहले लिख देते. कार्बन कितना है यहाँ पे 1, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 4, ऑक्सीजन कितना है 2. यहाँ पे कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 2 प्लस 1. ये रहा ऑक्सीजन 2 प्लस 1 कितना है, टोटल 3 ऑक्सीजन. ठीक है, तो सबसे पहले किसको करना पड़ेगा, कार्बन. मैंने जो रूल बोला वो. ठीक है, कार्बन 1 इक्वल है. चलो अच्छा, वेरी गुड. हाइड्रोजन कितना है 4, हाइड्रोजन कितना है 2. यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो क्या करना पड़ेगा, 4 चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 2 करो, यहाँ पे 2 करो. वापस वही हो गया, इधर 2 से किया तो ऑक्सीजन भी कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. मतलब यहाँ पे 2 इंटू 1, यहाँ पे 1 है तो क्या हो जाएगा 2. सो बेसिकली यहाँ पे 2 प्लस 2 टोटल 4 हो जाएगा, बिकॉज 2 है इधर और इधर भी 2 आ गया. समझा? तो टोटल कितना होगा अभी, ऑक्सीजन 4, कार्बन तो बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन कितना हो गया 4, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया 4. क्लियर है? नाउ वी आर गोइंग टू द वर्ड ऑक्सीजन. ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 4, ये बैलेंस्ड हो गया, ये बैलेंस्ड हो गया. अभी ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 पे मल्टीप्लाई कर दो. डन. 4
oxygen 4, oxygen 4, hydrogen 4, hydrogen 4, carbon 1, carbon 1, balanced. So CH4 plus 2O2 gives CO2 plus 2H2O. Done. Number of carbon and number of hydrogen and number of oxygen on left hand side and right hand side both are equal. Yes or no? समझ रहा है नहीं समझ रहा है? It's very simple. Clear? Let's take few more examples. ठीक है? We'll take few more examples. Okay, we'll take few more examples. Okay, so we'll be taking few more examples on balancing equation. So I'll be writing. Let's write. I have Al plus O2 gives Al2. Okay, Al2O3. Sorry for that. There was something. Okay. Yeah. So what we have to do? We have to balance this. So how do we balance this? Same cheese. Al how much? 1. Al how much? 2. ऑक्सीजन कितना है? 2. ऑक्सीजन कितना है? 3. ऑक्सीजन कभी करना है लास्ट में, पहले एल्यूमिनियम करो. यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना 1, यहाँ पे 2 है. तो क्या करो, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा मैं. ठीक है, चलो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया. इधर 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया. वेरी गुड. ठीक है, नो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है. सो अभी कैसा नहीं ऑड नंबर है जो डिस्टर्ब कर रहा है हम लोग को. सो क्या करने का ऐसे टाइम पे, जब भी 2 और 3 ऐसा आता ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, तो दोनों कितना हो जाएगा 6 और ये भी 6. आई एम रिपीटिंग अगेन. देखो क्या किया मैंने, यहाँ पे 2 है ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 है ऑक्सीजन. ठीक है, ये 2 है, यहाँ पे 3 है. अगर ऐसे एक साथ रहेगा तो हाँ, इसके पहले वाले सम में देखा ना तुम लोग ने, क्या था, O2 और O था, तो वो कंबाइन नहीं था, वो अलग अलग था. वो यहाँ पे O3 एक साथ है, इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो 6 हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया, इधर 6 हो गया, इधर 6 हो गया. अभी ये बैलेंस नहीं है. तुम लोग क्या सोचो, सर हो गया बैलेंस, वेरी गुड. बट तुम लोग देखा ना, यहाँ पे 2 पे मल्टीप्लाई हुआ तो एल्यूमिनियम को भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ. दैट मींस यहाँ पे भी 2 से आया तो यहाँ पे 4 हो गया. सो काफी टाइम ऐसे होगा कि ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद वापस तुम लोग को रिवर्स जाके चेक करना पड़ेगा एल्यूमिनियम बैलेंस है कि नहीं. तो अभी एल्यूमिनियम बैलेंस है क्या, नहीं, इधर 4 है, इधर कितना 2 है, तो इसको 2 से चेंज करके मैं 4 कर दूंगा. नाउ इट इज बैलेंस. 4 एल्यूमिनियम, 4 एल्यूमिनियम, 6 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन. यस और नो. सो बैक ट्रैक मतलब रिवर्स भी एक कभी कभी जाना पड़ सकता है तुम लोग को. यस और नो, बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन. समझा नहीं समझा, दैट्स व्हाई आई सी ऑक्सीजन लास्ट में करो, बट उसके बाद वापस रीचेक करो कि सर है कि नहीं बराबर, यहाँ पे 4 है कि नहीं, वो चेक करना है. एक बार तुम लोग को लगे कि चलो इक्वेशन बैलेंस हो गया, उसके बाद वापस रीचेक करो. काफी टाइम ऐसे हो सकता है, तो प्लीज डू रीचेक योर केमिकल रिएक्शन. प्लीज डू रीचेक. यस और नो, अदरवाइज रॉन्ग होने का हाईली चांस है. एंड में हो गया मेरा, मेरे को लग रहा है, चलो मेरे को लग रहा है हो गया. काउंट कर दे, चलो 4 एल्यूमिनियम, यहाँ पे 2 2 जा 4 एल्यूमिनियम, 2 2 जा 4, यहाँ पे 3 2 जा 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 3 जा 6 ऑक्सीजन. यस, अभी बैलेंस है. गेटिंग माय पॉइंट. मैंने पर्पसली ऐसे टाइप ऑफ इक्वेशंस लिए हुए और लूंगा मैं, डोंट वरी. ठीक है, आई विल बी टेकिंग फ्यू मोर दिस काइंड ऑफ एग्जांपल्स so that you guys can understand in a better way. Yes or no? ठीक है, let's take few more examples. Okay, let's take this example again. यहाँ पे Al plus HCl gives AlCl3 plus H2. ठीक है, ओके, चलो ये इक्वेशन है. सो नाउ वी नीड टू बैलेंस दिस. अगेन क्या करना है, एल्यूमिनियम कितना है यहाँ पे 1. ठीक है, हाइड्रोजन कितना है 1, Cl कितना है 1, यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना है 1, क्लोरीन कितना है 3, हाइड्रोजन कितना है 2. है बैलेंस नहीं है. ठीक है, सो एल्यूमिनियम 1 एल्यूमिनियम 1, वेरी गुड. रिवर्स कर देता हूँ यहाँ पे क्लोरीन 1 हाइड्रोजन 1. ठीक है, क्लोरीन 3 है, इधर है क्लोरीन 3 इधर. तो कैन आई डू वन थिंग, यहाँ पे इंटू 3 कर दूं, यहाँ पे इंटू 3 कर दिया. यस और नो, इंटू 3 यहाँ पे किया तो हाइड्रोजन भी कितना हो गया मेरा, हाइड्रोजन भी इंटू 3 हो गया, मतलब हाइड्रोजन 3 हो गया, क्लोरीन 3 हो गया. इधर मैंने इधर कुछ नहीं किया, समझा. नाउ आई नीड टू मल्टीप्लाई हाइड्रोजन. हाइड्रोजन कितना यहाँ पे 3, हाइड्रोजन कितना यहाँ पे 2.
हाइड्रोजन 3 है, हाइड्रोजन 2 है, वापस कैसे सेम कंडीशन है, 3 है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन कितना है 2 है यहाँ पे. सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन मल्टीप्लाई हियर इंस्टेड ऑफ 3, यहाँ पे 3 है तो इंटू 2 कर दूंगा और यहाँ पे इंटू 3 कर दूंगा, क्योंकि सर ऑलरेडी 3 तो किया हुआ है. तो क्या हो गया, ये 3 की जगह पे 3 इंटू 2 6 लिख दो. क्या लिख दो 6, ये 3 2 सा 6, तो यहाँ पे क्या आएगा तुम लोग का 3 आ जाएगा. यस और नो. अभी इधर 6 किया तो इधर क्लोरीन भी क्या हो गया 6 हो गया ना. क्लियर है, ये क्लोरीन भी क्या हो गया तुम लोग का 6 से मल्टीप्लाई हुआ. सो ये 3 है तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो. सो कितना हो गया 3 इंटू 2 1 इंटू 2 इधर 2 इधर कितना हो गया 6. क्लोरीन 6 क्लोरीन 6, हाइड्रोजन 3 2 सा 6, हाइड्रोजन 3 2 सा 6. यहाँ पे एल्यूमिनियम नहीं है तो यहाँ पे इंटू 2 हो गया. अभी 2 एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम 2, क्लोरीन 6 क्लोरीन 6, हाइड्रोजन 3 2 सा 6 3 2 सा 6. समझा. तो बैक ट्रैक करना पड़ा मुझे, थोड़ा डिफिकल्ट था, थोड़ा ट्रिकी था, नॉट डिफिकल्ट, थोड़ा सा ट्रिकी था कि कैसे करना है. समझा तुम लोग को. ये क्या किया मैंने, पहले एल्यूमिनियम तो बैलेंस था जाने दिया, क्लोरीन को 3 से मल्टीप्लाई किया, बट यहाँ पे मेरे को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ा तो मैंने 3 की जगह पे 6 किया. तो वापस में बैक पीछे गया और क्लोरीन को 6 से मल्टीप्लाई किया. समझा. तो यहाँ पे भी चेंज करना पड़ा. Getting my point? This is the way you balance. See number of atom on left hand side and right hand side is same or not. Clear है? Let's take a last example. ठीक है? Then we'll be done with the what this chapter. Last example. Let's take last example. Okay, sure. Zn plus HCl gives ZnCl2 plus H2. ठीक है. चलो बैलेंस करते हैं. ठीक है, थोड़ा इजी वाला है. जिंक इक्वल टू 1, हाइड्रोजन 1, क्लोरीन ओके उल्टा उल्टा उल्टा, हाइड्रोजन इधर आएगा, हाइड्रोजन 1, जिंक 1, क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2. अभी सिंपल है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, पर पहले क्लोरीन करना है. क्लोरीन कितना 1 है, इंटू 2 कर दिया, इंटू 2 कर दिया, ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन भी इंटू 2 हो गया. जिंक तो 1 है, जिंक तो 1 है, क्लोरीन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हो गया बैलेंस. बस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है. चेक करो, जिंक 1 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2 डन. समझा. सिंपल है, बैलेंसिंग इक्वेशन इज वेरी सिंपल. जस्ट लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे नंबर ऑफ एटम इक्वल होना चाहिए. दैट्स इट. सो वी आर डन विद दिस चैप्टर. ठीक है, आई विल बी सेंडिंग यू अ वर्कशीट ऑन बैलेंसिंग इक्वेशन. यू हैव टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर वर्कशीट. Yes, and submit me. Any doubts you guys can contact me. Thank you.